Apparently, you might not be able to see the screen. All right, so that is something we have to start with. So we'll be starting with this chapter of Animal Kingdom. So first of all, you should know that हर साल roughly आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ जाते हैं. So you will get around 2 questions from this particular portion. So this portion does have a weightage. अब वेटेज सिर्फ इस चैप्टर का यहाँ पे नहीं है. यू कैन ऑल्सो फाइंड कि इस चैप्टर में जो भी आप सीखते हो समझते हो, इट ऑल्सो हैज सम काइंड ऑफ रिलेशन टू अदर चैप्टर एज वेल. सो दैट इज व्हाई आप जो भी इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे और जब आप जाके देखते हो अपनी एनिमल फिजियोलॉजी, तो काफी चीजें यहाँ पे आपकी रिलेट करती है, या मैं कहूंगा कई सारी चीजें आप यहाँ पे एज अ कंपैरेटिव एनाटॉमी की तरह आप यहाँ पे रिलेट कर पाते हो. So you should know that Animal Kingdom, even though it will have a weightage of only 8 marks, generally आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं 8 मार्क के, but you should know that it will have some kind of foundation आपके यहाँ पे create किया जाएगा. You will find some kind of foundation will be created over here in terms of animal physio. उसका एक आपका एक baseline आपके यहाँ पे बनता है, ठीक है. So you will come across some terms over there and you will understand few terms, new terms here. So वो आपको हमेशा यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे. चलिए. So we know that we have a library with the scattered books. यहाँ पे basically बताया जा रहा है आपको कि why classification is going to be important for us. So what do you get to see in classification? That you will find कि you have all the species. आपके सारी species है आपके घर के आसपास. You have your animals, you have plants, and all of them are being kept in a certain way. They have to be like kept in a certain way, जिसको हम कहते हैं like arrange करके रखना. तो यहाँ पे basically आपको बताया जा रहा है that why we need to carry out the classification. So अगर आपके सामने कोई एनिमल आ रहा है, then you have to classify that animal in a proper way and then you have to put them in a right category. Something जो हमने थोड़ा बहुत हमने सीखा था, जाना था, जो हम पढ़ रहे थे हमारे यहाँ पे चैप्टर 1 and 2 जो हम देख रहे थे, we have understood why classification is going to be important for us. तो वही चीज आपके यहाँ पे मेंशन की हुई है. So library with the books arranged. So here we have all the species you can see in front of you, and in animal classification we are going to arrange them. So you are going to arrange them in the right category, and yeah, that is something we'll try to understand. So we have all the biodiversity throughout the world. पूरे world की biodiversity आपके सामने है यहाँ पे, and not सामने है exactly, but you know these are the animals which will be placed into different groups. So हमारे objectives यहाँ पे क्या रहेंगे? So initially we will try to understand the basis of classification. So basis of classification 1 and 2 ये points को हम यहाँ पे सीखेंगे, and then going forward then we can start with the non-coordinates को हम बाद में आराम से देखेंगे. But आज के क्लास के अंदर we will try to understand and study the basis of the classification 1 and 2. So now let's start with animal classification, जहाँ पे हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे like we'll talk about the fishes, insects, mammals, amphibians, reptiles and birds. अच्छा कोई मुझे बताओ यहाँ पे amphibians के example क्या क्या आते हैं? Anyone can raise their hand and tell me the examples. मुझे काफी interesting मिलता है generally होता हूँ. हाँ जी पूरा बताइए. What are the examples I'll have of for the amphibians? सर हमारे फ्रॉग, सेलमेंडर, क्रोकोडाइल. Okay. So इसलिए मैं जब भी amphibians के example पूछता हूँ generally I get something new in that. So crocodile का बेटा नहीं आएगा. Crocodile is something which won't come over there, right? So Slendra, Hyra, Rana. Rana. Yeah, Hemant, you can right now you can, yeah, I'll ask you, then you'll have to speak. You have to simply raise your hand and then I will let you know. Okay, sir. Okay, Yeah. okay, okay. Yeah. So you will have examples like your frog, right? You can have an example like my salamander. So 3 example आप यहाँ पे ऐड हो सकते हो. Frog, salamander and Sicilian. जो आप राना हैला कह रहे हो, these are the genuses over there. आपको मैं बताना स्पेसिफिकली ये चाहता हूँ कि एम्फीबियंस के अंदर आपका टर्टल टॉर्टोइज नहीं आता, आपका क्रोकोडाइल आपको यहाँ पे नहीं आता. सो यू डोंट फाइंड योर क्रोकोडाइल कमिंग इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप. यू डोंट फाइंड योर टर्टल्स एंड टॉर्टोइज कमिंग इन द एम्फीबिया. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. दिस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो दैट एम्फीबिया विल ओनली हैव फ्रॉग्स, सैलामेंडर एंड सिसिलियन, राइट, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे वहां पे. ऑलराइट, चलिए.
So let's start with the basis of classification. So you have like more than 10 million different kind of living beings throughout the world. अब हमारा काम है इनको सही ग्रुप में प्लेस करना. So we have to place them in the right group. So classification is a process of grouping these things based on the similarities. तो चलिए वही करते हैं हम यहाँ पे. Let's start doing that. So it requires scientists to clearly identify the key characteristics of the organisms. तो आपको एक एनिमल को क्लासिफाई करने के लिए you have to know their traits, and those traits should be very 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 clear to you. And then only you can place them in the right group. Then आप उन्हें right group में आप वहाँ पे place कर सकते हो. Scientists classify organism based on the organism looks, habit, food, locomotion, growth and reproduction. तो ये सारे traits को आप देखते हो और इनके अलावा भी कई सारे डिटेल ट्रेट्स के बाद ही आप उनको क्लासिफाई करना चालू करते हो. तो फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई एनिमल आता है जो लिम्बलेस है, जिसके लिम्स नहीं है, राइट, उसके कान भी नहीं है, so he can place that animal into a group of my reptiles, or he can place that group into a snakes के अंदर उन्हें डाल सकता है. So you have to understand their traits and then you have to place them into the right group. So it is a tool by which one can deal with great diversity of living forms. It helps identify the relationship between the organisms. So for example, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब आप एनिमल्स को क्लासिफाई करोगे ना, आप जैसे आगे बढ़ोगे, I think you might be knowing this, but your birds have actually evolved from reptiles. आपके जो बर्ड्स हैं वो एक्चुअली रेप्टाइल्स में से इवॉल्व किए हैं. क्या आप में से कोई बता सकता है हैंड रेस करके कि इनमें से कौन सा ट्रेट आपको ऐसे बर्ड्स में मिलता है जिनको देख के मैं कहता हूँ कि हाँ ये तो रेप्टाइल से रिलेटेड है? एनीवन कैन टेल मी दैट? योर बर्ड्स हैव एक्चुअली इवॉल्व्ड फ्रॉम द रेप्टाइल्स. यू हैव टू नो. नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दैट वन ट्रेट व्हिच यू थिंक टेल्स मी कि हाँ आई कैन से दैट. हाँ जी अलीशा बताइए. सर उनकी बॉडी पे स्केल्स होते हैं. बर्ड्स के बॉडी पे स्केल होता है. पीठ पे, सॉरी. राइट, बिल्कुल सही. सो विल हैव द हाइंड लिम्स. अगर आप देखोगे कोई बर्ड्स के हाइंड लिम्स को, तो हाइंड लिम्स विल हैव सम स्केल्स ओवर देयर. इफ यू हैपन टू ऑब्जर्व द हाइंड लिम्स. समरागी बताइए क्या कहना चाहते हो आप? Claws तो you also get to see in different group as well, but hind limbs having the scales. Hind limbs having the scales, and these scales are peculiarly seen by reptiles. जो आपके बर्ड के हाइंड लिम्ब पे आपको स्केल्स दिखते हैं ना, वो सेम टाइप के स्केल्स आपको रेप्टाइल्स की बॉडी पे आपको मिलते हैं. सो दैट इज अ इंडिकेटर दैट योर रेप्टाइल्स आर द वन जिनमें से आपके बर्ड्स इवॉल्व किए थे. सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो, राइट. अब एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी, पता है एक पिक्चर आई थी बीच में जुरासिक पार्क करके. देयर वाज दिस मूवी कॉल्ड जुरासिक पार्क, आई थी बहुत पहले आई थी, बट आई थिंक आपने कभी कभी सुना होगा या देखा होगा. तो उसका जब पहला मूवी आया था ना, तो उसमें वो लोग दिखाते कि हाउ दे हैव मेड अ रेप्टाइल एंड दे हैव यूज्ड द डीएनए ऑफ अ फ्रॉग. वहां पे उन्होंने यूज किया था, जो एक तरीके से वहां पे सही नहीं था. दे कुड हैव एक्चुअली यूज्ड द डीएनए ऑफ अ बर्ड टू मेक अ रेप्टाइल, बिकॉज बर्ड का डीएनए और एक रेप्टाइल का डीएनए, राइट, उसमें काफी ज्यादा आपको सिमिलरिटीज वहां पे आपको मिल जाती है. So that is also one of the example that you should know that your birds have actually evolved from the reptile because they have a similarity in number of things. So hind limbs वाला traits तो आपको यहाँ पे दिख जाता है, and बाकी traits तो genetic level पे होते हैं जो आप देख नहीं पाते हैं. Okay. Now the term used for grouping of organisms को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? जब आप organisms को group कर रहे हो यहाँ पे, then कौन सा term आपको यहाँ पे आएगा? इसको आप वैसे ही बता सकते हो unmute करके. क्या होगा सर आपका? वैसे ही बता दो unmute करके. Classification. Classification. Right, it is going to be my classification. True. So now, like there are billions of species in the animals throughout the world. We have to identify, name, and group them into the different groups on the basis of the similarities and dissimilarities के ऊपर आप उन्हें base like classify करते हो. So these are the things you all know. ये सब चीजें हम यहाँ पे जानते हैं. Now let's move on to the main part, that how you classify them. So let's start with my level of organization. So either you can have an animal which will have a cellular level of organization like your sponges. अब sponges में आपको क्या मिलता है? Which are a phylum of my porifera. तो उसमें आपको वहां पे क्या मिलेगा? So when I talk about my cellular level of organization ना, which I'll be finding in a group of my porifera, ये मुझे मिलेगा मेरे ग्रुप के अंदर, that is your porifera. अब porifera ग्रुप में आपको यहाँ पे क्या होता है? That they will have all the cells inside their body, but cells are not forming tissues. आपके जो भी cells आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, their cells will have an independent life. So all the cells you will find over there will be having the independent life over there. So you'll have porifera is going to be the group. So porifera is going to be the phylum in which you will find you have a cellular level of organization. Then you can have a tissue level of organization. Tissue level आपको वहाँ पे मिलती है जहाँ पे आपके cells मिल रहे हैं and they are forming the tissues.
like your Coelenterata, Ctenophora, इन सब के अंदर cells आपके इकट्ठा हो रहे हैं and they are forming the common tissue and that tissue will do some kind of work. So that is my tissue level of my organization. Then you have an organ level of organization, जहाँ पे आपके tissue इकट्ठा हो रहे हैं and they are forming the organ. And उसके बाद you will have the organ system level of organization. अब पता है कंफ्यूजिंग पार्ट क्या होता है आपके लिए जनरली कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में आपके यहाँ पे फर्क क्या आएगा. सो जब मैं कह रहा हूँ यू हैव अ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस व्हाट, यहाँ पे यू विल हैव अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, मतलब आपके स्मॉल स्मॉल ऑर्गन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विच आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली और उनका फंक्शन काफी सिंपल होता है. बट जब मैं बात करता हूँ ऑर्गन सिस्टम, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी के अंदर वी हैव अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस वी हैव अ लिवर, हार्ट, लंग्स, ऑल आर फंक्शनिंग, बट सारे ये कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं. आपके लंग्स, हार्ट, लिवर, दे आर ऑल कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर एंड देन दे आर वर्किंग. तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जब मैं कहता हूँ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मींस आपका एक सिंगल ऑर्गन है और वो इंडिपेंडेंटली एक सिंपल टास्क को खत्म कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज माय ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. So याद रखना, you have a cellular level, you have a tissue level, organ level, and you have a organ system level of my organization will be seen in my animal group. तो इसके बेसिस के ऊपर आप एनिमल्स का पे डिवाइड करते हो. So let's have a look at that. So आपके cells टिश्यू बनाते हैं आपके यहाँ पे organs, and then you can have the organ system where you have a multiple organs functioning together, working in coordination and doing their work. That is something called as my organ system level of my organization. So ये हमें यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. For example, sponges. तो स्पॉन्जेस के अंदर यू हैव ओनली सेल्स, यहाँ पे सेल्स आपके टिश्यू नहीं फॉर्म कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई वी से दैट दे हैव सेल्यूलर लेवल ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ग्रेड ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन आपको स्पॉन्जेस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा. सो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल, दैट इज द ओनली एग्जांपल यू विल फाइंड. सो याद रखना पॉरीफेरा, अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग. आपसे अगर पूछा जाएगा कि कौन सा फाइलम आपका होता है जिसके अंदर आपको मिलेगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, द आंसर इज गोइंग टू बी माय पॉरीफेरा. द आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर Porifera. ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे याद रखनी है. सेल्स आर अरेंज एज अ लूज सेल एग्रीगेट. सो याद रखना है यहाँ पे आपके सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड दे आर देयर ओवर देयर एंड दे आर वर्किंग एज अ सेल्स बट दे आर नॉट फॉर्मिंग अ टिश्यू ओवर देयर. यहाँ पे आपको टिश्यू फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. देन वी कैन हैव समथिंग लाइक माय Coelenterata. So Coelenterata is going to show the tissue level of organization. Coelenterata and even you have a Ctenophora. Coelenterata and even your Ctenophora. So Coelenterata and Ctenophora are the two groups which will show my tissue level of organization. तो यहाँ पे आपके cells will group together to form a tissue and they will have some kind of functioning. Jellyfish आप यहाँ पे देख पा रहे हो. Jellyfish is something you can see very clearly over there. So these are the example of my Ctenophora, like Coelenterata. Arrangement of cells are complex and they will form the tissues. And they have a much more better तरीके से लोग अपना काम यहाँ पे कर सकते हैं. So cell performing same function are arranged into the tissues and they will perform some kind of function over there. तो organ आपको नहीं मिला but you are forming tissue formation आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Then you have your platyhelminthes. Platyhelminthes के अंदर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे organ level of organization. That means you will have some basic organs, they will have some basic role, और वो काम अपना यहाँ पे कर रहे होंगे independently. They will be doing their job independently over there, right? They are not coordinating with other organs. So ये आपको मिलेगा आपके platyhelminthes के अंदर. So platyhelminthes will show the organ level of organization, जहाँ पे you can have independent organs जो अपना अलग से अपना काम कर रहे होंगे और उनका काम complex नहीं होगा, simple होगा, right? But when we talk about anyone beyond this, मतलब यहाँ इसके बाद when you see talk about your ocelomates, annelids, all of them will have a organ system level of organization. तो इसके बाद जितने भी आपके फाइलम आते हैं, all the phylums will be having the organ system level of organization. तो यहाँ पे सिर्फ आपको मिल जाए organ level, but after this you have your organs have associated to form a functional system. जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर है, you have a lungs, heart, kidney, liver, all are functioning all together, like they are all functioning in a close synchronization. तो वो आपको सारे larger groups में आपको देखने के लिए आपको मिल जाएगा. All the bigger groups will have the organ system level of your organization. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. This is again one thing which you have to know. अभी इन एग्जांपल्स को अगर आप याद नहीं रख पा रहे हो कोई बात नहीं, आगे जाके फिर आपको इनको याद हो जाएंगे. सो यू विल बी लाइक इन अ मैटर ऑफ सम टाइम यू विल रिमेंबर ऑल द एग्जांपल इन दिस जो भी मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. ठीक है. नाउ देन वी हैव समथिंग लाइक माय डाइजेस्टिव सिस्टम.
अब इसमें आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, मैंने डिस्कस और डायसिस सिस्टम ना, आप सिंपली एक दो चीज में याद रखो. फर्स्ट थिंग, एक बात आपको यहाँ पे सिखाई थी मैंने आपको यहाँ पे बहुत पहले, दैट यू विल फाइंड यू हैव अज्यूम दैट यू हैव अ मेल गैमेट. मेल गैमेट आपका हेप्लॉइड है यहाँ पे, सो दैट्स अ मेल स्पर्म. ह्यूमन की बात करो, यू हैव अ ह्यूमन स्पर्म ओवर देयर, राइट. ह्यूमन स्पर्म जाके फ्यूज करे आपके एग के साथ. एग भी आपका यहाँ पे हेप्लॉइड होगा, तो ह्यूमन स्पर्म इज गोइंग टू फ्यूज विद द एग. और जब मेरा ह्यूमन स्पर्म यहाँ पे एग के साथ मेरे यहाँ पे फ्यूज करता है, देन यू विल फाइंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ जायगोट. यहाँ पे आपको बनेगा आपके यहाँ पे जायगोट. अब जायगोट आपका ग्रो करना यहाँ पे चालू करता है. नाउ व्हाट विल हैपन, द जायगोट विल स्टार्ट ग्रोइंग इन सेल्स. मतलब इसके सेल्स अभी एक ही सेल है ना, वहाँ पे नंबर ऑफ सेल आपके यहाँ पे बढ़ेंगे. तो जायगोट जब आपके यहाँ पे ग्रो करता है, इट विल बिकम स्लाइटली लार्जर. तो समझो आपका जायगोट आपका ग्रो करेगा, माइटोसिस करेगा, एंड इट विल बिकम लाइक अ बॉल लाइक स्ट्रक्चर आपका ये बना लेगा. अब जब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता है ना, तो आपको एक छोटा सा डिप्रेशन यहाँ पे बनता है. यू विल फाइंड अ स्मॉल डिप्रेशन इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. ये जो स्मॉल डिप्रेशन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोपोर. ये जो डिप्रेशन आपके यहाँ पे बन रहा है, दिस डिप्रेशन इज ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोपोर. मेरी बात ध्यान से सुनना. आपका जायगोट था आपके पास यहाँ पे, इसने माइटोसिस करना चालू किया, सेल्स का नंबर यहाँ पे बढ़ चुका है, वी हैव थाउजेंड्स ऑफ सेल्स नाउ. और ये सेल्स यहाँ पे एक छोटा सा डिप्रेशन यहाँ पे बना रहे हैं, एंड द डिप्रेशन हियर इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोपोर. अब यहाँ पे होता क्या है, ये ब्लास्टोपोर आपका अंदर जाना चालू करेगा. इट विल गो इनसाइड. सो दिस ब्लास्टोपोर, ये डिप्रेशन आपका है ना, ये आपका अंदर की तरफ जाना चालू करेगा. सो लेट मी टेल यू हाउ दिस गोइंग टू लुक लाइक. दिस ब्लास्टोपोर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड. मतलब दिस ब्लास्टोपोर में जो आपका यहाँ पे डिप्रेशन है, वो आपका अंदर की तरफ जाना चालू करेगा. और ये आपका अंदर तक जाते जाते हुए व्हाट विल हैपन, इट विल अल्टीमेटली फॉर्म द, ये आपके एंड तक पहुंच जाएगा. सो दिस विल जस्ट कीप ऑन मूविंग इनसाइड, और ये आपका यहाँ पे एंड तक पहुंच जाएगा. अब ये जो आपकी इंटरनल लाइनिंग जो आपकी बनी है ना यहाँ पे, दिस विल बी फॉर्मिंग द गट. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ गट. एक बार फिर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. आपका जायगोट बना, जायगोट बनने के बाद आपके यहाँ पे सेल से डिवाइड किया, ग्रो किया, उनका नंबर यहाँ पे बढ़ा, एंड देन यू आर फाइंडिंग अ स्मॉल पोर इज फॉर्म, एंड दैट पोर इज कॉल्ड एज माय ब्लास्टोपोर. एंड नाउ दिस ब्लास्टोपोर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड. और जब ये आपका अंदर तक जाएगा, व्हेन इट विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, इट विल रीच टू द एंड. ये एंड तक आपके यहाँ पे पहुंच जाएगा. अब जब ये मेरा यहाँ पे एंड तक पहुंच रहा है, वेट अ मिनट ऋषा, जब ये मेरा यहाँ पे एंड तक पहुंच जाएगा, सो दिस स्ट्रक्चर ओवर देयर विल बी कॉल्ड एज माय गट. अब इसको हम इस तरीके से समझते हैं. ब्लास्टोपोर आपका बना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरा गट है, गट मतलब आपका आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. गट मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम. अब एक बात बताओ आप मुझे यहाँ पे, कि जब मैं कहता हूं यू हैव अ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चालू कहां से होता है? योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर? इट विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द माउथ. ये बात तो आप जानते हो. और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका, Yes, sir. इट विल ऑलवेज एंड अप इनटू द एनस. सो माउथ से स्टार्ट होगा एंड विल एंड इन द एनस. दैट्स द डाइजेस्टिव सिस्टम यू विल गेट टू सी, राइट. तो अब मेरी बात वापस ध्यान से सुनना. अगर आपका ब्लास्टोपोर, अगर आपका ब्लास्टोपोर जहां पे आपका ब्लास्टोपोर बना, अगर दैट एरिया बिकम्स एनस, इफ दैट एरिया बिकम्स एनस, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जब मेरा यहाँ पे आके ये ओपन होगा, व्हेन दिस एरिया विल कम ओवर एंड इट विल ओपन ओवर हियर, तो ये वाला जो मेरा पार्ट बनेगा यहाँ पे, दिस पार्ट विल बी माय माउथ. सिंपल सी बात है ना. गट के अंदर दो एरियाज होते हैं, यहाँ एनस एंड द माउथ. अगर मेरा ब्लास्टोपोर का एरिया अगर मेरा एनस बन रहा है, इफ दैट एरिया इज गोइंग टू फॉर्म द एनस, देन उसके अपोजिट जो बनेगा, दैट अपोजिट पार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय माउथ. क्या इतनी बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? पहले ये बताओ, क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. राइट. आपका यहाँ पे ब्लास्टोपोर आपका यहाँ पे बना, राइट. ब्लास्टोपोर इज नथिंग बट कि जायगोट के अंदर आपके कुछ सेल्स हुए, डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं, दे फॉर्म द बिगर नंबर ऑफ सेल्स, एंड नाउ दोस सेल्स आर गोइंग इनसाइड. सो दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर. सो ब्लास्टोपोर के अंदर यू विल बी फाइंडिंग कि अगर मेरा ब्लास्टोपोर यहाँ पे इनस बनेगा, तो उसके अपोजिट वाला साइड मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ माउथ. अब अगर आपको यहाँ पे ये चीज होते हुए आपको दिख रही है, then such animals are called as my deuterostomes. Such animals are called as my deuterostomes. So deuterostomes मेरे यहाँ पे कौन से होते हैं? deuterostomes मेरे यहाँ पे वो होते हैं जिनके अंदर आपका ब्लास्टोमेर आपका बना के दे रहा है आपको यहाँ पे एनस. When the blastopore forms the anus,
then such animals are called as my deuterostromes. अगर ब्लास्टोपोर अगर आप यहाँ पे एनस बना रहा है, दैट इज अ ब्लास्टोपोर ना, अगर यहाँ से अगर आपका एनस बन जाए, then such animals are called as my deuterostromes. पहले तो आप ये बात यहाँ पे याद रखना. अब अगर आपकी कंडीशन यहाँ पे अलग हो जाती है, नाउ लेट्स से आई विल मेक अ सेपरेट कंडीशन इन दिस. हाँ जी ऋषा बताइए क्या सवाल है आपका. ऋषा अपना सवाल पूछ लीजिए आप पहले, बोलिए. ऋषा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी. आफ्ताब तब तक आप अपना सवाल पूछ लीजिए. सर मुझे जाइगोट से समझ नहीं आया. जाइगोट तो फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट से समझ नहीं आया सर. सुनो मेरी बात, जायगोट से अब क्या होगा, जायगोट अपना ग्रो कैसे करेगा, वो अपने आप को करेगा ग्रो कैसे, क्या करेगा वो, कौन सा डिवीजन करेगा आफ्ताब जायगोट. सर मियोसिस करेगा ना. माइटोसिस करेगा ना, माइटोसिस जायगोट है ना. हाँ राइट. तो माइटोसिस जब आप करोगे, जब आपके पास एक सेल है आफ्ताब, अगर वो माइटोसिस करेगा तो सेल्स का नंबर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा. बढ़ेगा सर. बिल्कुल बढ़ेगा. तो आप बढ़ा लो अपने सेल्स के नंबर को एंड यू मेक इट अराउंड 1000 जितने आप सेल्स कर लो. ठीक तो है. ये जो मैंने आपको बना के दिया हुआ ना ये स्ट्रक्चर, इमेजिन करो यहाँ पे आपके 1000 सेल्स हैं. अब 1000 सेल्स वाला एक गोल सा स्ट्रक्चर बन गया और वहां पे आपको एक छोटा सा डिप्रेशन आपको बनते हुए आपको दिख गया. And that depression which has been formed over here, that depression is called as my blastopore. क्या ये बात समझ आई आफ्ताब? यस सर. सर ये डिक्टेशन होता क्या है? डिप्रेशन मतलब ये जो होल है ना यहाँ पे, ये दिख रहा है ना यहाँ पे छोटा सा होल. हाँ ठीक है. दैट्स योर ब्लास्टोपोर. अब ये जो ब्लास्टोपोर तुम्हारे यहाँ पे बन रहा है ना आफ्ताब, ये आपका अंदर तक जाना चालू करेगा. इट विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, राइट. तुम ऐसे समझो कि बलून के तुम ऐसे अगर उंगली डाल के अगर आप खींच रहे हो तो आप अंदर जा रहा है ना वो आपका पोर्शन वहां पे. सिमिलरली ये सेल्स का ये डिप्रेशन है ये आपका अंदर जाएगा और ये आपका अंदर जा रहा है और अंदर जाते जाते हुए आपके दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा. टनल बन रही है आपकी यहाँ पे देखा जाए तो. आफ्ताब एक टनल बना रहे हैं हम यहाँ पे और वो टनल आपके एंड तक पहुंच गई. ओके सर. अब जहां से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं ना, अगर वो पार्ट ये हो गया मेरा ब्लास्टोपोर, अगर मेरा ब्लास्टोपोर यहाँ पे एनस बन रहा है तो ऑब्वियसली बात है अपोजिट पार्ट मेरा पे माउथ बनेगा. सिंपल सी बात है. ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे ड्यूट्रोस्ट्रोम, जहां पे आपका ब्लास्टोपोर विल टर्न इनटू द एनस, दैट इज कॉल्ड माय ड्यूट्रोस्ट्रोम. अब ये बात समझ आई आपको? यस सर. Yes, sir. And I hope it's clear to all of you as well. Is the embryo in which blastopore? Yeah, but it is going to be embryo. I'm not using the term embryo because it becomes slightly confusing for everyone. So that's why I've just told. Zygote will divide, will grow in number, and then that grown number cell or that grown number blastocyst, or you can call it the embryo, will have this thing. ठीक है ऋषा? So ये बात, yeah, it's embryo. Okay. So this is what you find happening in this. अब आप सोचो यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे लगा लो, दिमाग लगा लो. See. Similarly, what we will find happening here is कि समझो आपके पास है यहाँ पे आपका जायगोट, राइट. यू हैव दिस जायगोट और यू हैव द एम्ब्रियो और यहाँ पे आपका आपस से आपका डिप्रेशन बनना यहाँ पे चालू हुआ. बट यहाँ पे आपका जो ब्लास्टोपोर है, सो दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर. दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर. अगर मेरा ब्लास्टोपोर यहाँ पे मुझे बना के देता है माउथ, अगर मेरा ब्लास्टोपोर मुझे यहाँ पे माउथ बना के देगा, then in that case such group of animals are called as my protostomes. Such group of animals are called as my protostomes. तो इधर आपका ब्लास्टोपोर आपको माउथ बना के देगा या फिर आपको बना के देगा आपका यहाँ पे इनस. तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला पार्ट मेरे यहाँ पे माउथ बन रहा है, if this part, if the blastospore is forming the mouth, तो उसके अपोजिट क्या बनेगा? सर एनस. Anus. So this opposite side will form the anus. सर ये प्रोसेस है क्या? प्रोटोस्टॉम्स. ये नाम है. So if I ask कि humans किस में आते हैं, तो you will say humans will come under the deuterostromes. Humans are being categorized into a group called as my deuterostomes. तो humans को हम deuterostomes क्यों कहते हैं? Because इनके अंदर आपका ब्लास्टोपोर पहले बनाता है एनस एंड देन उसके बाद आपका माउथ बनता है. ठीक है. So your chordata rather actually or the chordates will come under my deuterostomes. एग्जाम्पल्स हम बाद में देखते हैं, ग्रुप्स हम बाद में समझते, पहले आप इन टर्म्स को आप यहाँ पे समझ लो या इन प्रोसेस को आप यहाँ पे समझ लो. इफ यू आर फाइंडिंग द एनस is being formed by the blastopore, then you call that group of species, that group of organisms are my deuterostome. अगर एम्ब्रियो के अंदर अगर आपका ब्लास्टोपोर एनस बना रहा है, then you call them as the deuterostomes. अगर एम्ब्रियो के अंदर आपका ब्लास्टोपोर यहाँ पे आपको बना के दे रहा है आपके यहाँ पे माउथ पार्ट, then you have to call them as a protostomes. इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब मुझे बताओ क्या ये वाली बातें आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, the next thing you have to know here is
organ system exhibit different pattern of complexity. So basically you can have a complete digestive system, you can have an incomplete digestive system. So complete के अंदर what will happen, you will have a two openings, right? Two opening मतलब you will have a mouth and the anus. So when you say we have a complete digestive system, so it will have a two openings, you will have a mouth and the anus. So that's a complete one. Incomplete में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? You will have a single opening is present. Single opening मतलब you will have a एक single opening आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, और वही माउथ होगा, वही आपको यहाँ पे एनस हो जाएगा. So याद रखना, you can have a incomplete digestive system or you can have a complete digestive system. Incomplete में कह सकता हूँ like my cylindrata. Cylindrata के अंदर you will have an incomplete digestive system, right? Even same thing goes for my porifera. Porifera, cylindrata will have an incomplete digestive system, जहाँ पे you will have a single opening. यहाँ से खाना अंदर भी आ रहा है और यहाँ से सब डाइजेस्ट करके जो वेस्ट होगा वो आपके यहाँ पे बाहर निकलेगा. On the other hand, the complete digestive system will be having your mouth and the anus. Will have your mouth and the anus over here. So you have a well-developed system आपको यहाँ पे मिल जाएगा. Something you can find in all the higher groups will have the mouth and the anus. So that's your complete and incomplete one. तो ये एक simple term है जो आपको यहाँ पे याद रखना है. Then you have a open and closed one. Open circulatory system आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? That the blood is pumped out of the heart. आपका ब्लड यहाँ पे पंप किया जा रहा है हार्ट के बाहर, और ये ब्लड आपका ब्लड वेसल से ट्रेवल नहीं करेगा. अब एक बात याद रखना, आपके बॉडी के अंदर ब्लड जो आपका ट्रेवल कर रहा है वो आपका ट्रेवल कर रहा है इन द ब्लड वेसल्स के अंदर. यू हैव योर वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, और उसके अंदर आपका ब्लड यहाँ पे ट्रेवल कर रहा होता है. सो दैट काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज माय क्लोज सर्कुलेशन. दैट काइंड ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड माय क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, या क्लोज्ड सर्कुलेशन उसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं. बट अगर आपका ब्लड आपके कैविटी में घूम रहा है और आपका कोई ब्लड वेसल उसे कैरी नहीं कर रहा, देन उसे हम यहाँ पे बोलेंगे एज माय open circulatory system. I will call it as an open circulatory system. So blood is circulated through the series of blood vessels. Something you can find in the chordates के अंदर आपको मिल जाएगा. So this is something you can find in the chordates. So chordates will have the closed circulatory system. उसके साथ you can also have example of my annelids. Annelids will also have my closed circulatory system. ओपन आपको बाकी सारे नॉन कॉर्डेट्स में आपको मिल जाता है. आपको ओपन वन लाइक यू विल हैव योर मोलुस्का, यू कैन हैव समथिंग लाइक योर आर्थ्रोपोडा, कॉकरोच आपका आ गया है इसके अंदर. सो दीज आर ऑल गोइंग टू द सम ऑफ द एग्जांपल इन व्हिच यू विल फाइंड द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम विल बी सीन इन देम. ठीक है. सो यार इतना ओपन के अंदर आपके पास ब्लड वेसल्स यहाँ पे नहीं है. द ब्लड इज फ्लोइंग इन द कैविटी. ब्लड आपका कैविटी में आपके यहाँ पे फ्लो कर रहा है, जैसे कि आपको कॉकरोच या इंसेक्ट में आपको मिल जाएगा. बट अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की या हायर ग्रुप ऑफ एनिमल्स की, यू विल ऑलवेज फाइंड यू हैव वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स जिनके अंदर आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है. सो अगर यू हैव अ ब्लड वेसल्स देन इट्स अ क्लोज्ड वन. इफ यू डोंट हैव द ब्लड वेसल्स एंड इट इज मूविंग थ्रू द हार्ट टू द कैविटी, देन दैट इज माय ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐसा हम याद है, यहाँ पे देख लेते हैं. इफ यू आर एबल टू आंसर दिस नाउ, फॉर दिस यू हैव टू रेज योर हैंड. द डाइजेस्टिव सिस्टम इन व्हिच टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट. अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मिले, then what are you finding in this? Now for this you have to raise your hand. बताइए रवीना, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, the complete digestive system. Right. When you have two openings, then you are going to call it as a complete digestive system over here. Yes. So this is something we have already done. Let's talk about my symmetry. अब symmetry हम यहाँ पे समझते हैं. Now understand one thing. When you talk about the symmetry, ना, the one of the three terms you will find in this. एक तो आपको यहाँ पे होता है that you have a term like your asymmetry. So when I talk about asymmetry in this, ना, asymmetry का मतलब आपका ये होता है कि आप एनिमल को किसी भी तरीके से आप कट कर लो, आपको you won't get an equal halves. So if you have an animal over here, समझो ये आपका एनिमल है. And if this animal has been cut into different, like आप इसे कहीं से भी कट कर लो, आप इसे बीच में से कट कर लो, साइड में से कट कर लो. If you are not getting equal halves, आपको कभी भी आपके equal halves नहीं मिलेंगे. So you will never get equal halves. So no equal halves can be formed. No equal halves are formed. तो अगर आपको ऐसा कोई ग्रुप मिलता है जिसके अंदर आपको कोई इक्वल हाफ मिल ही सकता है, आप कहीं से भी एनिमल को कट कर लो, then that kind of group is called, that kind of symmetry is called asymmetry. asymmetry आपको मिल जाती है आपके यहाँ पे पोरिफेरा के अंदर.
पॉलीफेरा को आप कभी भी आप इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. सो असिमेट्री का सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका जो यहाँ पे आएगा, दैट इज माय पॉलीफेरा. सो पॉलीफेरा कैन नेवर हैव एनी काइंड ऑफ सिमेट्री. इनको आप इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं. बट ऑन द अदर हैंड, इफ आई टॉक अबाउट माय एनिमल्स, if I talk about human beings, if I talk about your some other animals over here, like cockroach ले लूं मैं, birds ले लूं, I can have a symmetry in them. I can divide the animal into two equal halves. चाहे मैं ह्यूमन की बात करूं या टाइगर की बात करूं या लिजार्ड की बात करूं, मैं उन्हें दो इक्वल हाफ में कट कर सकता हूं. अब इसको मैं कैसे यहाँ पे डिफाइन करूंगा? Let's see that. So you have a term which is called as my bilateral symmetry. When you cut an animal, when you cut an animal in an longitudinal plane, अगर आप किसी एनिमल को लॉन्जिट्यूडनल या एक सिंगल प्लेन में अगर आप कट करते हो, then you should get a two equal half. If you get two equal halves, if you happen to get a two equal halves, then such kind of symmetry is called as my bilateral symmetry. तो अगर आप एक सिंगल प्लेन में अगर एनिमल को कट करते हो बीच में से, राइट, इफ यू कट द एनिमल इन सिंगल प्लेन लॉन्जिट्यूडनली अगर आप कट करते हो सिंगल प्लेन के अंदर, देन व्हाट विल हैपन, यू कैन गेट टू इक्वल हाफ्स. आपको यहाँ पे दो इक्वल हाफ्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. अगर आपको दो इक्वल हाफ्स अगर आपको यहाँ पे मिल जाए, दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय बायलैटरल सिमेट्री. तो इसको बोलूंगा यहाँ पे एज अ बायलैटरल सिमेट्री का यहाँ पे मेरा एग्जांपल ये बन जाएगा. तो बायलैटरल सिमेट्री के अंदर याद रखना, यू हैव टू कट द एनिमल इन अ सिंगल प्लेन लॉन्जिट्यूडनली. सो लॉन्जिट्यूडनल सिंगल प्लेन में अगर आप कट करते हो, सो यू कैन गेट टू इक्वल हाफ्स. आप बीच में से कहीं से भी कट नहीं कर सकते, यू हैव टू कट देम इन अ सिंगल प्लेन के अंदर. आपको दो इक्वल हाफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. बट व्हेन आई टॉक अबाउट अदर काइंड ऑफ सिमेट्री, दैट्स अ रेडियल वन. सो बायलैटरल तो आपको हर एक ग्रुप में, लाइक हर एक हायर ग्रुप में आपको मिल जाएगी. सो आई कैन टॉक अबाउट लाइक राइट फ्रॉम योर प्लेटीहेलमिन्थस से लेके सारे ग्रुप के अंदर आपको मिलता है बायलैटरल. सो आई कैन क्लियरली से दैट फ्रॉम द प्लेटीहेलमिन्थस, सो प्लेटीहेलमिन्थस से लेके योर कॉर्डेट्स तक सबके अंदर आपको मिलेगी आपके यहाँ पे bilateral symmetry. All of them will have the bilateral symmetry, right? So they can cut them into the two equal halves. But on the other hand, if I talk about the radial symmetry, तो उसमें क्या होता है, आपको कट करना पड़ेगा. You can cut in any plane. आप किसी भी प्लेन से आप कट करो, but the incision should pass to the center. आप किसी भी प्लेन से आप कट करो, लेकिन आपका इंसिशन आपका सेंटर से पास होना चाहिए. अगर वो करने के बाद अगर आपको दो इक्वल हाफ्स मिल जाए, then that is called as my radial symmetry. मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ. So you have a asymmetrical, that's your sponges. कोई सिमेट्री इनकी नहीं होती. आप कहीं से भी कट कर लो, आपको कभी इक्वल हाफ नहीं मिलेंगे. You cut in any plane passing through a center. आप किसी भी प्लेन से कट करो, बट आपका इंसिशन आपका सेंटर से पास होना चाहिए. And you will find two equal halves you will get over there. That's my radial symmetry. अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेडियल सिमेट्री की, if I talk about my radial symmetry, so radial symmetry में आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? So what I will find in radial symmetry? So in this you will get to see something like your echinodermata. So echinodermata मेरा यहाँ पे आ जाएगा. I will have a group like your coelenterata. Coelenterates आपके यहाँ पे आ जाएंगे. And then you will also have a group of your ctenophora. तो ctenophora, coelenterata and echinodermata, ये आपके तीन ग्रुप्स आपके यहाँ पे आएंगे. And all these three groups are going to show the radial symmetry. So any plane passing through the center divides the organism into two equal halves, and that is going to be called a radial symmetry. और ये आपके तीन ग्रुप्स होते हैं जिसके अंदर आपको मिल जाता है echinodermata, coelenterata and your ctenophora. These are the groups will show the radial symmetry. Bilateral में आपको बता चुका हूँ, आपको कट करके आपको सिंगल प्लेन के अंदर longitudinal cut. Body can be divided into identical left and right halves, and that is my bilateral symmetry in a single plane. In a single plane, longitudinally आपको यहाँ पे कट करना पड़ेगा. And these are the examples. So all the higher groups, सारे higher groups right from the platyhelminthes से लेके आपके coordinates तक सबके सब आपके यहाँ पे शो करता है आपके यहाँ पे bilateral symmetry, except your echinodermata. Except your echinodermata, everyone is going to show the bilateral symmetry. ठीक है.
चलो, so now you have a concept test. इस बहुत आसान है. We like you can simply answer this without even looking at the options over here. Symmetry in which body identical left and right halves. Yes, it is going to be your. वैसे ही बता दो इसका आंसर क्या होगा. वैसे ही बोल दो. Bilateral symmetry. In this. ठीक है. Now this is something you have to understand, germ layers. अब आपको यहाँ पे germ layer वाली बात आपको यहाँ पे सीखनी पड़ेगी. चलिए बात करते हैं यहाँ पे germ layers की. So when I discuss something in terms of the germ layer, now when I discuss the germ layer in this, so अरीशा बताइए. अच्छा, अरीशा और मुस्कान का सवाल है ना. अरीशा बोलिए क्या सवाल है आपका. Okay, it's not question. अच्छा, ठीक है. So now when we talk about the germ layers ना, तो germ layer वाली कहानी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके सामने वापस फ्यूचर में भी आपकी रिपीट होगी. So when we discuss about the germ layers ना, germ layer आपकी होती है 3. हमारे अंदर we have 3 germ layers. Possibly आपके पास 2 कंडीशन हो सकती है. Either animal can have 2 germ layers, like you can have something like your ectoderm, or you can have something like your endoderm. So like 2 germ layer आपको अगर आपको दिख रही है, then such group of animals are called as my diploblastic animals. ये जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स आपके यहाँ पे होते हैं इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. यू कॉल देम एज अ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. On the other hand, you will find if you have 3 germ layers, if you have ectoderm, mesoderm, and your endoderm. अगर आपको 3 germ layers अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, if you are able to see this 3 germ layers, then in that case, such group of animals are called as my triploblastic animals. अब ये तो बड़ी ही सिंपल सी बात है कि 3 है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 है तो आपके डिप्लोब्लास्टिक. आपको यहाँ पे समझना ये कि germ layer करते क्या है. तो आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि germ layer बेसिकली करेंगे क्या. What these germ layers are going to do for us? You can tell me that. अरीशा बताइए germ layers से करना क्या है. अरे अरीशा आपका माइक नहीं चल रहा. अरीशा and her issue with the mic. Anyone else want to tell me this? What are these germ layers are going to do for us? Like करेंगे क्या ये germ layers हमारे लिए? Just wait a minute. Let me see the chat. Nothing in the chat. All right. No clue. You people know what are germ layers, but formation of the body. Okay. That's a very simple way of putting it. ऑर्गन्स के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं. बनाते हैं organ. Germ layers will form the organ. They will form the organ. They will form the complete body. Basically. मैं आपको यहाँ पे example लेता हूँ. Let me tell you one thing. Let me use this slide to make you understand. So पहले याद रखना that you can have 2 conditions. Either you can have animals which will have only 2 germ layers, without call my diploblastic animals. डिप्लोब्लास्टिक में आपके यहाँ पे आ जाएगा आपका पोरिफेरा आपका आ जाएगा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा आमा डिप्लोब्लास्टिक. तो इसमें जो आपका आएगा पहले तो इन एग्जांपल को आप याद रखो फिर हम आगे देखते हैं. You can have your porifera, you have your nidavians, that's your Coelenterata, and you will have your Ctenophora. ये सारे आपके यहाँ पे आपके डिप्लोब्लास्टिक. But on the other hand, you have all the other group of animals, right from my platyhelminthes से लेके आगे तक जो भी आपके ग्रुप आता है, that's going to be your triploblastic. So from here, from your platyhelminthes, Purva sir, each germ layer give rise to नहीं बेटा, yeah ठीक है, right, that's true. But I need a very answer from your side. I don't need a very that kind of answer which is a made up answer. I want you to explain कि हो क्या रहा है वहाँ पे, right? So platyhelminthes to your chordates. They will have 3 germ layers. अब मेरी बात आप यहाँ पे ध्यान से सुनो कि यहाँ पे आपका हो क्या रहा है. So जब हम germ layers के यहाँ पे बात करते हैं, when we discuss about the germ layers ना, so पहले हम देखते हैं कि यार आपकी बन कैसे रही है. अब ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान दोगे तभी समझ आएगा, right? Or else you will miss out. Again, now I'll make a zygote over it directly. So assume that you have a zygote. You have a diploid zygote over here. अब ध्यान देना यहाँ पे होता क्या है. zygote आपका करेगा आपका यहाँ पे माइटोसिस. So zygote will divide in number and इसके अंदर आपके ग्रुप ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे बढ़ने लगे. So we will find
आपके नंबर ऑफ सेल्स आपके यहाँ पे बढ़ जाता है. सो आफ्टर सम टाइम यू विल हैव दिस विल टर्न इनटू एम्ब्रियो एंड एम्ब्रियो विल हैव मोर नंबर ऑफ सेल्स. सो दिस हैज टर्न इनटू द एम्ब्रियो और एम्ब्रियो के अंदर आपको कई सारे सेल्स आपके यहाँ पे मिल जाए. जब बहुत ज्यादा सेल्स आपके यहाँ पे बन जाते हैं, व्हेन यू फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, अब इन सेल्स के अंदर आपको जर्म लेयर फॉर्मेशन आपका स्टार्ट होता है. मतलब कुछ सेल्स आपके यहाँ पे होंगे, आपके एम्ब्रियो के अंदर कुछ सेल्स आपके होंगे एंड दोस सेल्स विल नाउ टर्न इनटू योर एक्टोडर्म. There will be some cells will return into your ectoderm, right? कुछ cells आपके यहाँ पे होंगे, they will turn into the mesoderm. There will be some cells inside the embryo, and those cells will turn into what we call them as a mesoderm. And remaining cells जो आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, the remaining cells will be finding over here will be called as my endoderm. Right? So you have ectoderm, mesoderm, and endoderm over here. So you will find these three germ layers will be seen over here. अब जब आपको ये तीन germ layers आपको यहाँ पे दिख रही है, जब आपको ये तीन germ layers आपको बनते हुए आपको दिख रही है, then you will say यहाँ पे एक इवेंट हो चुका है. जब आपको आपके एम्ब्रियो के अंदर तीन germ layer दिख जाती है, this event is called as my gastrulation. इस इवेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गैस्ट्रुलेशन, कि गैस्ट्रुलेशन आपके यहाँ पे हो चुका है. गैस्ट्रुलेशन आपका हो चुका है. तो अगर आपका यहाँ पे जायगोट में से आपका सेल डिवीजन आपके यहाँ पे हुआ और सेल डिवीजन करके आपके ग्रुप ऑफ सेल्स आपके बन चुके हैं, सो आपका एम्ब्रियो यहाँ पे बन चुका है. अब एम्ब्रियो के अंदर आपको तीन जर्म लेयर भी आपको दिख गई. तो आपके एम्ब्रियो के अंदर नाउ यहाँ पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म आपके यहाँ पे बन चुका है. तो जब ये चीजें आपके यहाँ पे हो चुकी है, व्हेन दिस थिंग हैज हैपेंड, आई विल से दिस इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर इज कॉल्ड एज माय गैस्ट्रुलेशन. मेरा गैस्ट्रुलेशन मेरे यहाँ पे हो चुका है. अब गैस्ट्रुलेशन हो चुका है मतलब क्या, कि मेरी जर्म लेयर यहाँ पे बन चुकी है. अब सवाल आता है कि जर्म लेयर बनने के बाद मुझे यहाँ पे क्या फायदा मिलेगा. जर्म लेयर यहाँ पे बन गई, नाउ व्हाट दे विल फॉर्म ओवर हियर. सो यू शुड नो सम बेसिक थिंग्स. जैसे कि आपका जो एंडोडर्म आपके यहाँ पे होता है ना, एंडोडर्म इज गोइंग टू फॉर्म योर नर्वस सिस्टम. फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में आपको बना के देगा आपके यहाँ पे नर्वस सिस्टम. दिस विल फॉर्म माय नर्वस सिस्टम. आपका जो मेसोडर्म आपके यहाँ पे होगा, दैट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ योर इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन फॉर्मेशन में आपकी मदद करेगा. इंटेस्टाइन में कह सकता हूँ यहाँ पे, आप मैं सिंपली कह सकता हूँ और गट. जब मैं गट कह रहा हूँ तो आई होप आपको मालूम है ना कि आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल के लिए यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स. यू हैव इंटेस्टाइन, स्टमक, विलाई, यू हैव अ रेक्टम, राइट. सो यू हैव अ लार्ज इंटेस्टाइन अगेन. तो ये सब बनाएगा आपके यहाँ पे मेसोडर्म. सॉरी ये सब आपको बना के देगा आपके यहाँ पे एंडोडर्म. द कंप्लीट गट सिस्टम विल बी फॉर्म बाय माय एंडोडर्म यहाँ पे. सो कंप्लीट गट सिस्टम Yes, sir. बाय एंडोडर्म. ठीक है, ये आपको एंडोडर्म आपको यहाँ पे बना के देगा. And then you have the mesoderm, and this mesoderm will be forming something like your heart, muscles, and your skeletal system. ये सारी चीजें आपका मेसोडर्म आपको बना के देता है. अब मैं चाहता हूं कि इससे आप वाकिफ हो जाओ, क्योंकि आपके सामने अगले 2 साल के अंदर आपके सामने ये बार बार आएगा. सो मेसोडर्म इज समवन हु कैन फॉर्म योर मसल्स, स्केलेटल सिस्टम, हार्ट, राइट. बनाता तो बहुत कुछ ही है, बट हमें कुछ चीजें याद रखनी है जो हमारे लिए रेलिवेंट है नीट एग्जाम के लिए. एक्टोडर्म आपको बना के देगा आपका यहाँ पे नर्वस सिस्टम, एंड योर एंडोडर्म आपको बना के देगा आपका यहाँ पे व्हाट यू कॉल्ड एज योर इंटेस्टाइन और गट. ये आपको आपका एंडोडर्म आपको बना के देगा. सो अगर आपसे कोई पूछे कि मेरी जर्म लेयर्स करती क्या है, सो दे आर एक्चुअली गोइंग टू फॉर्म योर कंप्लीट बॉडी. पूरी बॉडी आपकी इन लोगों ने आपको बना के देनी है, एंड यूजिंग दोज सेल्स यू कैन फॉर्म एवरीथिंग ओवर इनसाइड द बॉडी. तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो अबाउट द जर्म लेयर्स. ठीक है, क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. This is something should be very much clear to all of you. अब अगर आप पीछे जाते हो ना, when you talk about my diploblastic animals over here, इनके पास मेसोडर्म नहीं है, बट अगर देखा जाए तो ये एनिमल्स भी आपके कॉम्प्लेक्स नहीं है. योर पोरिफेरा, निडेरियंस एंड टिरोफोरा आर नॉट द वन व्हिच आर वेरी कॉम्प्लेक्स वन. These are the group of animals which are actually quite simple one. तो यहाँ पे आपके वो सारे ऑर्गन्स बनाने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ती. So that's why they can live with this. But other groups will have a mesoderm, and that's going to be important. That is going to create a difference for them. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना, and remember what is my germ layers are going to make. ठीक है. So germ layer is a primary layer of the cell that forms during the embryonic development. Based on the germ layer, you have a diploblastic and triploblastic animals.
consists of two germ layers, ectoderm and endoderm, with the fluid-filled mesoglea. So you have a small fluid within the endoderm and mesoderm. That's ectoderm and endoderm. That's a mesoglea. तीन germ layer अगर आपके यहाँ पे, then you have ectoderm, endoderm, और बीच में आपको मिलेगा आपके यहाँ पे mesoderm. Example are my coelentrates. यहाँ पे example आपका आ गया platyhelminthes से chordates तक, सब आपके यहाँ पे बनेंगे आपके यहाँ पे triploblastic, right? So these are the things you have to know in this. ये simple चीजें जो आपको यहाँ पे आ जाती हैं. You can see these germ layers in front of you. Either you can be diploblastic or you're going to be your triploblastic. Triploblastic में आपकी एक लेयर यहाँ पे ऐड हो जाएगी. That is going to be your mesoderm. That's it. Concept test. An embryonic development which involves two germ layers. वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर? Sir, Diploblastic. Going to be diploblastic all the time. Right. So these are the things we will get to see in them. ये सारे, like, this is a summary. You can go through the summary later on. This is something we have all seen right now. अभी तक हमने जो भी देखा है वो आपको यहाँ पे summary में mention किया हुआ है. You can have a look at that later. Now, let's talk about your second basis of classification. इसके लिए कुछ सवाल हमें यहाँ पे करना पड़ेंगे. तो पहला सवाल, अब इसके लिए आप हैंड रेज करना. Which of the following are the level of organizations? Which of the following are the level of organizations? So question number 1. इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आसान सवाल है, जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं. So बताइए आलिया, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Sir, option D, all of the above. That's a correct answer. All of the correct answer in this. Second question, when any plane passing through a central axis of the body divides the organism into two identical halves. Central axis से कट आपका पास हो रहा है और आपको यहाँ पे दो equal halves आपको यहाँ पे मिल जाए. So if you have this question number 2 in front of you, then what can be the possible answer in this? करिए हैंड रेज इसके लिए. चलिए बताइए लव, क्या लग रहा है इसका आंसर आपको? सर रेडियल सिमेट्री. एंड दीपांकर, आपको क्या लग रहा है? सर रेडियल. तो याद रखना, रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल क्या आएंगे फिर दीपांकर, आपके बताइए रेडियल सिमेट्री के आपके एग्जाम्पल क्या बन जाएंगे? एग्जाम्पल ही बताने पड़ेंगे आपको मुझे, आप लोगों को. बताइए हिमांशी. कोई बात नहीं दीपांकर, कोई बात नहीं. हिमांशी, क्या लग रहा है आपको? व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री? सर इसके एग्जांपल एकिनोडर्मेटा, सीलेंट्रेटा और स्टिनोफोरा. राइट, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड एकिनोडर्मेटा विल बी एग्जांपल ऑफ रेडियल सिमेट्री. ठीक है, कोई मुझे बता दे फटाफट असिमेट्री के एग्जांपल यहाँ पे क्या होंगे? बताओ. कौन बताएगा? सलोनी, आप बताओ. व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ माय असिमेट्री? Sir, polyphera. Right. So you cannot have equal division in them. ठीक है. Alright, then the question number 3 यहाँ पे. Animals in which cells are arranged in two embryonic layer. अगर आपको दो embryonic layer अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, then इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? बता दो आफ्ताब, आप बता दो जल्दी इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर डिप्लोब्लास्टिक. एग्जाम्पल दो आफ्ताब. इसकी सर डिप्लोब्लास्टिक के एग्जाम्पल दो. और किसके बोलूंगा एग्जाम्पल? सर पॉलीफेरा हो गया और कॉलेंट्रेटा. and Tinophora. All of them going to be my diploblastic in nature. ठीक है. And right, so that's what they will be finding in them. Sir, question number 3 का bilateral नहीं होना चाहिए? क्या bilateral? Question number 3 ये वाला, animals in which cells are arranged in two embryonic germ layers. इसका bilateral नहीं होगा बेटा. ये लोग Question number 2. Bilateral symmetry because two identical halves हैं. सुनो. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? From any plane. रेडियल में बेटा क्या होता है ना, देखो बायलैटरल में क्या होता है, हमने पहले बोला था आपको, you have to cut them in a single vertical in a single plane, that to longitudinal plane के अंदर. अगर आप सिंगल वर्टिकल प्लेन में अगर आप उसे कट कर रहे हो और उसके बाद अगर आपको दो हाफ्स अगर आपको मिल जाए, then we call them as a bilateral symmetry. रेडियल में क्या होता है, आप कहीं से भी कट कर लो, आप कहीं से भी उसे कट कर लो, बट आपका जो इंसिजन है आपका सेंटर से पास होना चाहिए. When you cut the animal from any plane, but the incision is passed through the central axis. When any plane passing through the central axis, बीच में से उसका कट पास होना चाहिए. जब आप ऐसा कट कर रहे हो, and when you get two identical halves, then that is going to be called as my radial symmetry. समझ आए मेरी बात? तो याद रखना, हमेशा दो हाफ को देख के बायलैटरल पे जंप मत करना. याद रखना, बायलैटरल के अंदर you will cut them in a single plane longitudinally and then you will get a two halves.
यहाँ पे यू कट देम फ्रॉम एनी डायरेक्शन बट द इंसिशन शुड पास टू अ सेंटर। कट आपका सेंटर से जाना चाहिए एंड देन आपको दो हाफ आपको मिल जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी अ रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब अगर इतना याद रख सकते हो, एक और चीज आपको बताता हूँ इसके अंदर, बट एक ये क्वेश्चन करने के बाद, अ कंप्लीट डायजेस्टिव सिस्टम हैज हाउ मेनी ओपनिंग्स? ये वैसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Two Sir, openings. two. Two openings. Sir, two Right. openings. राइट। Those animals in which developing embryo has third germ layer mesoderm, उन एनिमल्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? Triploblast. Sir, triploblastic. 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 Triploblastic, ठीक है। So that is something we'll find in this. ये हमने यहाँ पे देख लिया। Now there's one thing you should be very much clear here is that ये तो चलो हमने यहाँ पे समझ लिया, देख लिया। यहाँ पे जो आपको ने सिखाया था ना अबाउट द रेडियल सिमेट्री, तो मैंने बोला था एग्जांपल एज माय एकानोडर्मेटा, मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया था। अब एकानोडर्मेटा में आप एक चीज यहाँ पे याद रखना, when we talk about एकानोडर्मेटा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या होती है? इन एकानोडर्मेटा जब इसका एग्जांपल आप जानते हो ना, यू हैव एग्जांपल ऑफ अ स्टारफिश इज वन ऑफ द एग्जांपल इन दिस। स्टारफिश का एग्जांपल है, इसके अंदर कई सारे एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाते हैं। Someone has unmuted themselves. So when you have a starfish over here, ना, there's one thing you have to know in this, कि starfish का अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, so एकानोडर्म्स में होता क्या है, that you will have two kind of symmetry basically. आपके जो adults होते हैं, all the adults will have the bilateral symmetry. Sorry, all the adults will have the radial symmetry. So एकानोडर्म्स के अंदर आप याद रखना that all the adults will have radial symmetry. On the other hand, इनके जो लार्वा होते हैं, the larval stage or the larva will be having your bilateral symmetry. ठीक है, so have a radial symmetry and you have a bilateral symmetry over here. So याद रखना, रेडियल सिमेट्री में आपको यहाँ पे याद रखना दैट यू हैव एडल्ट ओवर हियर। सो एडल्ट जो आपके होते हैं उनके अंदर आपको रेडियल मिलेगी, और जो उनके लार्वल फॉर्म होते हैं उसके अंदर आपको मिलेगा आपको यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री। अगर आप यहाँ पे लार्वल फॉर्म क्या होता है समझ नहीं पा रहे तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने बटरफ्लाई को तो देखा है, सो बटरफ्लाई को अगर आप देखोगे तो जब उसका कैटरपिलर होता है वो बटरफ्लाई जैसा नहीं दिखता, कहीं से भी नहीं दिख रहा होता वो। नाउ दैट कैटरपिलर इज एक्चुअली अ लार्वल फॉर्म, ओके, एंड नाउ दैट लार्वल फॉर्म विल टर्न इनटू द एडल्ट बटरफ्लाई। तो जैसे मैं लार्वा का एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ आपके बटरफ्लाई के कैटरपिलर का, वैसे ही आपके एकेडोडर्म्स में क्या होगा, इन द एकेडोडर्म्स यू विल फाइंड यू विल हैव अ लार्वल स्टेज एंड दैट लार्वल स्टेज विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन जब मेरा लार्वा कन्वर्ट हो रहा है एडल्ट के अंदर, इट विल हैव अ रेडियल सिमेट्री। तो ये एक पॉइंट है जो आप यहाँ पे याद रखना, जो आप फ्यूचर में वापस एक बार फिर देखोगे, बट यू शुड नो दिस थिंग। एकेडोडर्म्स के अंदर याद रखना द एडल्ट विल हैव द रेडियल सिमेट्री, बट लार्वल स्टेज जो आपके यहाँ पे होता है दे विल हैव द बायलैटरल सिमेट्री। तो ये एक तरीके का मेटामॉर्फोसिस है जो आपको इसके अंदर होते हुए आपको मिल जाएगा। क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. तो याद रखना लार्वा एंड एडल्ट फॉर्म में आपके यहाँ पे क्या चेंजेस आपको यहाँ पे मिल गए। नाउ लेट्स हैव लुक एट समथिंग एल्स इन दिस। सो अब हम बात करते हैं सीलम फॉर्मेशन के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट द सीलम फॉर्मेशन। हाँ जी मुस्कान बताइए, सवाल बोलिए आपका, बोलिए बोलिए मुस्कान बोलिए अनम्यूट करके। सर ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म था, इनके बीच में एक लेयर होती है मेसोग्लिया, और मेसोडर्म That's not a layer. That's not a layer. Wait, Muskan, mesoglea is not a layer. It's a gel-like structure which is present over there. It's not a layer. It's a fluid-like structure present over there, and that's a mesoglia. It's not a layer. याद रखना, वो layer नहीं है। ठीक है? हाँ। अरीशा बताइए क्या सवाल है आपका? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पूछना था कि जो मेसोग्लिया होता है उसका फंक्शन क्या होता है? Okay, so mesoglia is something which is going to provide a cushion to the other organs over there. So all the organs you find in these smaller groups, ना, उनको एक तरीके से आपका cushion provide किया जाता है with the help of the mesoglia. So what happens ना, the similar thing, the similar kind of cushion is also provided to us as well. But हमारे अंदर mesoglia नहीं होता. We have a coelomic fluid. वो हमारे organs को cushion provide करता है, या मैं कहूँगा protection provide करता है। तो उसी तरीके से आपका जो body organization जो होता है ना आपके इन groups का, Coelenterata आपका यहाँ पे हो गया, या when you have a Ctenophora, so these groups will have this mesoglia जब इनके पास होगा, तो this mesoglia will provide the cushion or the support to the organs over there.
तो ये उसका वहाँ पे काम होता है. दिस इज व्हाट द मीजोग्लिया इज गोइंग टू बी डूइंग ओवर देयर. द सेम थिंग यू फाइंड आल्सो डन बाय इन अस एज वेल, बट हमारे अंदर वी हैव एडवांस्ड सिलोमिक फ्लूइड जो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है और एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ठीक है, अरीशा पता चला मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. एंड सर एक और चीज पूछनी थी कि जो ऑर्गेनिज्म डिप्लोप्लास्टिक होते हैं उनके पास हार्ट भी नहीं होता. आप देखो ना, आपका डिप्लोप्लास्टिक एनिमल आपका यहाँ पे है कौन? टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा. हार्ट तो बहुत दूर की बात हो गई. हार्ट तो काफी दूर की बात होगी इनके लिए. यू कैन नेवर फाइंड हार्ट. तो लाइक दे डोंट इवन हैव अ सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट तो छोड़ो, दे डोंट इवन हैव एनी काइंड ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन देम. कुछ नहीं होता उनके पास. दे आर जस्ट Okay, sir. सम group of cells forming the tissue and surviving over there. So now you have a coelom, you have a body cavity over here. So now let's talk about the coelom. क्या होता है आपका यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे समझते हैं. So let me show the NCERT का picture. That is the best example. So now you know, अब coelom की बात आप तब करते हो when you talk about the triploblastic animal. So a diploblastic animal के अंदर आप coelomic cavity आप नहीं ढूंढते. अगर मैं आज की डेट में अगर मैं लवकुश के हाथ में एक हाइड्रा देता हूं, अगर एक सिलेंट्रेटा उसके हाथ में रखता हूं, एंड देन आई विल टेल हिम टू फाइंड द सीलम इन दैट, उसमें उसे सीलम कभी मिलेगा नहीं वहां पे. सो सीलम आप ढूंढते किसके अंदर, या सीलम क्या होता है आपका? फ्लूइड फिल्ड कैविटी है. सीलम इज नथिंग बट माय फ्लूइड फिल्ड कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडर्म. और ये आपको मिलके सिर्फ उसी ग्रुप के अंदर जिसके अंदर आपको मिल सकता है आपका यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. इवन ओनली इन द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल यू कैन फाइंड दिस कैविटी. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दैट. So you have a coelomate, pseudocoelomates and your acoelomates. So you have these three groups. अब coelomates के अंदर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? You will find. Now let's start with the acoelomates. हम acoelomates यहाँ पे start करते हैं. मैं आपको ये picture दिखाता हूँ. Let's have a look at this. So here you will get to see that. Let's have a look at this picture number C in this. Acoelomates के अंदर आपको यहाँ पे क्या हो रहा है? You have this is my ectoderm. I'll just write short ectoderm मेरे यहाँ पे. देन अंदर जो आपको ग्रे कलर की जो आपको यहाँ पे लेयर दिख रही है, दैट इज योर एंडोडर्म. जो ग्रे कलर की लेयर आपको यहाँ पे दिख रही है, दैट इज माय एंडोडर्म. एंडोडर्म. और जो रेड वाली लेयर जो आपके सामने है यहाँ पे, दैट इज योर मेसोडर्म. ठीक है, पहले तो आप ये तीन लेयर को आप यहाँ पे देख लो. अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपको मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई आपको स्पेस यहाँ पे दिख रहा है? द आंसर इज नो. मुझे मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मुझे यहाँ पे कोई स्पेस नहीं दिख रहा. ऑन द अदर हैंड यू ऑब्जर्व ओवर हियर, आप इसी चीज को आप देखो ए वाले पिक्चर के अंदर. ए इज माय सिलोमेट्स. सो सिलोमेट्स में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? व्हाट यू गेट टू सी इन द सिलोमेट्स ना, दैट यू हैव द एक्टोडर्म, देन यू हैव द मेसोडर्म जो आपको यहाँ पे आपका आएगा ये वाला लेयर, द रेड वन इज गोइंग टू बी मेसोडर्म ओवर देयर. एंड यू कैन सी along with that you have the endoderm जो आपके एकदम सेंटर में है. सो इन द सेंटर यू हैव द एंडोडर्म ओवर हियर. अब आप यहाँ पे देख सकते हो बिटवीन द एंडोडर्म एंड योर मेसोडर्म यू हैव द कैविटी इन दिस. यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ कैविटी, एंड दैट कैविटी जो फ्री कैविटी आपको यहाँ पे दिख रही है, इस कैविटी को मैं बोलूंगा यहाँ पे सिलोमिक कैविटी. दिस कैविटी हियर इज कॉल्ड एज माय सिलोमिक कैविटी. और ये जो सिलोमिक कैविटी आपको यहाँ पे दिख रही है ना, इसके अंदर ही आपको मिलेगा आपका यहाँ पे फ्लूइड. दिस कैविटी विल बी हैविंग द फ्लूइड, दैट इज माय सिलोमिक फ्लूइड. तो जो आपको यहाँ पे फ्लूइड दिखेगा, that fluid here is called as my coelomic fluid. Coelomic fluid. Right? So that is what we'll be finding in this. So understand this thing very carefully that you have an ectoderm, mesoderm and endoderm over here. और अगर आपको mesoderm और endoderm के बीच में अगर आपको स्पेस दिख रहा है, अगर आपको स्पेस दिख गया, so that kind of cavity is called as my coelomic cavity. और अगर आपको coelomic cavity अगर आपको यहाँ पे दिख रही है, this is called as my coelomates. तो अगर आपको यहाँ पे स्पेस दिख जाता है, then such group of animals are called as my coelomates. और अगर आपको यहाँ पे स्पेस नहीं दिख रहा, you can see over here, आपके acoelomates के अंदर आपके बीच में आपको यहाँ पे स्पेस दिख नहीं रहा, बिटवीन मेसोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में आपका कोई भी आपके यहाँ पे स्पेस नहीं है, एंड दैट इज व्हाई आई विल कॉल देम एज अ acoelomates. तो आपको मेन डिफरेंस आपको याद रखना है acoelomates और coelomates का, दैट प्रेजेंस ऑफ coelomic कैविटी. और ये कैविटी आपको कहाँ दिखती है? इट इज ऑलवेज सीन बिटवीन द मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में. अगर आपको मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर आपको यहाँ पे कैविटी अगर आपको नहीं दिख रही, दीज आर माय acoelomates. दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो. ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. अगर आप मुझे पूछोगे कि सर ये बीच में खाली स्पेस क्या है, दैट इज द गट लाइनिंग.
ये आपका गट है, ये आपकी गट की लाइनिंग है बेसिकली, दिस इज योर गट लाइनिंग। तो ये वो जगह है जहां से आपका खाना अंदर बाहर करता है, दैट्स अ गट लाइनिंग सेंटर। ओके, तो ये 3 चीजें आप याद, दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। हाँ जी, आप तो बताइए। सर स्कूल टीचर में तो जो व्हाइट कलर का पार्ट है, बॉडी कैविटी कहा था। सेम चीज होता है बेटा, गट लाइनिंग बॉडी कैविटी इज द सेम थिंग ओवर देयर। ये वो पार्ट होता है जहां से आपका लाइक यू विल फाइंड द थिंग्स आर गोइंग टू पास, राइट। सो गट लाइनिंग और बॉडी कैविटी इज सेम थिंग, ठीक है। देन यू हैव ऑप्शन बी ओवर हियर or picture B over here, and this picture B is going to be having something called as your mesodermal pouches. अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना, you will have ectoderm, आपको यहाँ पे clearly आपको दिख रहा है, you can see that thing very clearly over here. In the center you will be having your endoderm, and आपको यहाँ पे रियल में mesoderm आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. You don't have mesoderm in real over here. You will have a presence of a mesodermal pouches. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपके ये mesoderm है नहीं. These are the mesoderm in a mesodermal pouches. So in a true sense, you will not have a mesoderm, but you will have a mesodermal pouches. Mesodermal pouches. तो अगर आपको यहाँ पे mesodermal pouches अगर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, which is not a well-defined mesoderm, but in the pouches, this over here will be called as my pseudocelomate. अगर आपको ऐसा ग्रुप अगर आपको मिल जाता है, then such group will be tagged as my pseudocelomates. अब आप पीछे आओ and you try to see what is being mentioned over here. See, celomates में याद रखना आप यहाँ पे that body cavity is lined by your mesoderm, right? And you have annelids, mollusca, arthropods are all my celomates. So ये आपको याद रखना है that आपको यहाँ पे body cavity आपको यहाँ पे मिल जाए, you will have the coelomic cavity over here, and this coelomic cavity is something present within my mesoderm and endoderm के बीच में आपको मिल जाएगी. Then you have a pseudocelomates. So mesoderm is present in a scattered pouches between the ectoderm and the endoderm, और ये आपको मिलता है आपका एस्केलमेंथिस के अंदर. तो याद रखना एग्जाम्पल सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही आएगा. Escalmanthus becomes the only example of my pseudocelomates. So अगर आपको mesodermal pouches अगर आपको दिख रहे हैं, they are my pseudocelomates. Acoelomates में याद रखना the body cavity is going to be absent. आपकी जो body cavity आपकी जो आपके यहाँ पे होती है, that means your coelomic cavity. Coelomic cavity जो आपके यहाँ पे होती है वो आपके यहाँ पे absent होती है. अगर आपकी coelomic cavity अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रही, then that is my acoelomates. And all the early groups, Platyhelminthes के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे acoelomates. तो दे विल बी हैविंग दिस कंडीशन जहां पे कोई आपको यहाँ पे सिलोमिक कैविटी आपको यहाँ पे नहीं दिख रही. तो ये सारी टर्म्स याद रखना है. ये टर्म्स जो आपको बता रहा हूँ, इवन तो अगर ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, यू शुड नो दिस टर्म्स. व्हाट इज द सिलोमिक कैविटी, और उसके अंदर आपको फ्लूइड क्या मिलता है, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड एज सिलोमिक फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट एंड गोइंग टू प्रोवाइड. सो दैट इज व्हाट वी फाइंड इन दिस. ठीक है, बताइए आफ्ताब, बोलिए. आवाज रुक गई बीच में. सर ये सिलोमिक कैविटी क्या होता है, एक बार दोबारा बताना. इसमें फ्लूइड होता है क्या? हाँ, ये देखो, ये जो आपका स्पेस यहाँ पे आ रहा है ना, सब लोग सुनो ध्यान से. ये जो आपको स्पेस आपको दिख रहा है ना आपका यहाँ पे एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में आपको यहाँ पे जो स्पेस दिख रहा है, दिस स्पेस हियर इज कॉल्ड एज माय सिलोमिक कैविटी. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिलोमिक कैविटी, और इस कैविटी के अंदर आपको मिलेगा फ्लूइड, और ये फ्लूइड को हम बोलते हैं यहाँ पे सिलोमिक फ्लूइड. दिस इज व्हाट आफ्ताब, ठीक है, दैट इज व्हाट वी फाइंड इन दिस. बताइए ऋषा, बोलिए. सर आपकी वॉइस लैग हो गई थी बीच में, आप फंक्शन बता रहे थे सिलोमिक फ्लूइड का. यस मैम. सर हाँ ठीक है, हो सकता है, प्लीज बता दिया करो अगर कभी ऐसा हो ना, देन प्लीज लेट मी नो. ऐसे ही सो सिलोमिक फ्लूइड का आपका यहाँ पे जो फंक्शन यहाँ पे आएगा, इट इज गोइंग टू सपोर्ट द एंड नरिश द ऑर्गन्स. और आई वोंट से नरिश, गोइंग टू सपोर्ट द ऑर्गन्स. आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स आपके जो भी यहाँ पे आपके होते हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपका सिलोमिक फ्लूइड. दैट इज व्हाट माय सिलोमिक फ्लूइड इज नोन फॉर. क्वेश्चन और सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम होता है आपके सिलोमिक फ्लूइड का. सो दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग. ठीक है, सो आप याद रखना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है आपका सिलोमिक फ्लूइड टू द ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स. दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग हमारे अंदर. अनफॉर्चुनेटली प्लैटीहेल्मिन्थेस के पास ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई सिलोमिक फ्लूइड आपके पास नहीं होता. ठीक है, एंड एस्केलमेंथेस विल हैव दिस मेसोडर्मल पाउचेस, राइट. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. तो ये आपके 3 पिक्चर्स है. 3 पिक्चर्स को दिमाग में बिठा लो और याद रखना कि किस पिक्चर के लिए कौन सा एग्जाम्पल आपके यहाँ पे आ जाएगा. द एग्जाम्पल आर द वन विच यू हैव टू रिमेंबर. यही आपके सामने आएंगे बार बार क्वेश्चन बन के. सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो इन दिस, राइट. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ लेट्स डू वन मोर कॉन्सेप्ट इज एनिमल इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट. कौन है जिसके अंदर आपको कोई वहां पे आप
इसके अंदर आपको वहां पे कुछ मिल नहीं रहा था। मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन तो आपने यहाँ पे पढ़ लिया, मुझे डायरेक्टली आप यहाँ पे उस ग्रुप का नाम बताओ जिसके अंदर आपको ये बॉडी कैविटी आपको नहीं दिखती। टेल मी द नेम ऑफ द ग्रुप जहाँ पे आपको ये बॉडी कैविटी आपको देखने के लिए आपको नहीं मिलती। बताइए लव, आप बताइए इन विच ग्रुप यू डोंट हैव दिस काइंड ऑफ बॉडी कैविटी इज बीन सीन। सर आर्थ्रोपोडा। नहीं 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 नहीं, आठुड़ा नहीं है आपका। पहले तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है पहले भी बता दो। चलो भाई इसका आंसर पहले यहाँ पे बता दो, क्या होगा इसका आंसर। यू हैव नो बॉडी कैविटी सीन। सर एसिलोमेट और स्लोमेट का एग्जांपल आपका यहाँ पे था प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस सूडो का था एसपी हेलमिंथिस। हाँ, सूडोस्लोमेट का एस्केलमेंथस आएगा, लेकिन इसका आपका आएगा आपका यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थस। Right? Pseudocylomates will have the example of my Escalamenthes. That's one thing we'll find. And then you have a coelomates which will have number of examples. Okay. So there's something we have seen. Now let's talk about my segmentation. अब सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो कुछ एनिमल्स के अंदर तो आपको वैसे ही दिख जाता है। आपने अगर कभी अर्थवर्म देखा होगा तो उसके ऊपर आपको बॉडी के ऊपर आपको लाइनिंग्स आपको मिल जाएगी। विल हैव सम सेगमेंट्स ऑन द बॉडी। सो अर्थवर्म इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल वेयर यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट सेगमेंटेशन आर बीन ऑब्जर्व्ड। So you will find जब हम बात करते हैं यहाँ पे segmentation की, so you should know couple of groups you have to know over there. These segmentation are called as metameric segmentation. Metameric segmentation. अब metameric segmentation जो आपके यहाँ पे होते हैं, this metameric segmentation आपको मिलेंगे दोनों तरीके से. You will find them internally and externally as well. So आपके जो मेटाबॉलिक सेगमेंटेशन आपके जो यहाँ पे होते हैं वो आपके बाहर से भी आपको मिलेंगे यहाँ पे और आपके अंदर से भी आपको मिलेंगे। दैट मींस यू विल फाइंड देम एक्सटर्नली, जो आपको मिलेगा वो तो दिखेगा आपको, बट इंटरनली भी आपकी बॉडी डिवाइडेड होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर मैं अर्थ फॉर्म को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इफ आई एम ऑब्जर्विंग द अर्थ फॉर्म, तो अर्थ फॉर्म के अंदर आपको बाहर से तो आपको दिख ही रहे आपके सारे सेगमेंट्स यहाँ पे, बट अगर आप उसे ओपन करके भी अगर आप देखोगे तो इंटरनली भी आपको सेगमेंट्स मिल जाता है। तो इनको हम बोलते हैं यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन। अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगा आपके एनिलेट के अंदर, एंड यू विल आल्सो फाइंड देम इन द arthropods. So arthropods and the annelids are going to show the presence of my metameric segmentation. ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। You have one more group, but वो ग्रुप में आपको पिक्चर दिखा के समझाऊंगा और else आप समझ ही पाओगे कि वहाँ पे सेगमेंटेशन आपके कैसे बन गए। So we'll discuss that separately. But अभी के लिए याद रखना, your annelids and arthropods are the one which will show my segmentation. वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। So let's see. You can see the picture over here. So ये आपका अर्थवर्म है, and you can see all the segments very clearly seen in them. सारे segments में यहाँ पे clearly दिख जाएंगे, right? Similarly, you can have your arthropods as well. They can have a segmented body. The body shows such segments called as a metameric segmentation, and the phenomena is called as my metamerism. जो phenomena आपको यहाँ पे जो हो रहा है ना आपको होते हुए segmentation का, उसे हम बोलते हैं metamerism. तो सवाल ये भी आ सकता है कि कौन सा ग्रुप मेरा होता है जो शो करता है आपका metamerism. That is the kind of question they can ask you. It is always going to be your annelids, arthropods can show my metamerism. ठीक है। अगर आप देखोगे ना कभी, इवन अगर आप कॉकरोच को ऑब्जर्व करोगे कभी ध्यान से, तो उसके ऊपर आपको सेगमेंट्स मिलेंगे। इतना ध्यान से कोई कॉकरोच को देखता नहीं है, बट कॉकरोच आपका हो गया, ग्रास ओवर आपका हो गया, यू कैन फाइंड द सेगमेंट्स ऑन देम एज वेल। सो दैट इज व्हाई दे आल्सो गिवन एन एग्जांपल इन दिस। सो इट्स अ सिंपल टॉपिक, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। सो यू शुड नो दीस आर द ग्रुप्स व्हिच विल हैव द सेगमेंटेशन। नाउ एग्जांपल, यू नो एग्जांपल आपके यहाँ पे अर्थफॉर्म, यहाँ पे आंसर आएगा segmented body pattern is shown by autism is going to be a earthworm, right? So ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, किसी को याद है क्या, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है, ऑक्टोपस कौन से ग्रुप में आता है? एनीवन नोज दैट कि ऑक्टोपस आता कौन से ग्रुप में? ये मोलस्का में आता है। ये बात आपकी सही है, दैट इज मोलस्का। ऑक्टोपस एक्सेप्शन है बेसिकली। मैं एक्सेप्शन से यहाँ पे इसलिए बोलूंगा कि मोलस्का के अंदर ये आता है आपका ऑक्टोपस। नाउ ऑक्टोपस इज द एनिमल व्हिच विल बी हैविंग द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी सबके अंदर ओपन होता है, बाकी सारे मोलस्का के अंदर आपको ओपन मिल जाएगा, बट ऑक्टोपस इज द एक्सेप्शन ओवर हियर। दिस इज द वन व्हिच विल हैव द क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम इन देम। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बाकी कोई बताएगा मुझे क्रैब किसके अंदर आता है? इन व्हिच फाइलम द क्रैब कम्स? क्रैब आपका कौन से फाइलम में आ जाएगा? सर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा।
अगर आपने कभी क्रैब को देखा होगा ना, लाइक टीवी पे क्यों ना देखा हो आपने, उसके ऊपर आपको सेगमेंट्स दिख जाएंगे, उसके बॉडी के ऊपर आपको सेगमेंट्स आपको क्लियरली दिख जाते हैं। आप आर्थ्रोपोड आप ले लो, आप प्रॉन्स ले लो, दे विल ऑल ऑफ देम विल हैव द सेगमेंटेशन। ठीक है। हाँ जी अलीशा, कोई सवाल है क्या आपका, बताइए, या पुराना है? सर मुझे ये पूछना था कि सेगमेंटेशन 2 टाइप्स की होती है क्या? We won't go into that detail right now. इतना डिटेल में हम वहां से जाते नहीं है। You also basically get to say over here that coelomic fluid is also going to be of my different types, but we don't into that detail right now. ठीक है, या वो ज्यादा कंफ्यूजिंग आपके हो जाएगा इसलिए। ठीक है, so that's why we right now we do as a segmentation and we just keep it to a segmentation as a simple level पे हम उसे वहां पे रखते हैं। सेगमेंटेशन आप वहां पे हो रहा है एंड that's why जो सेगमेंटेशन होती है वही मेटामेरिक सेगमेंटेशन होती है। हाँ, सो जो आपको सेगमेंटेशन जनरल टर्म, सेगमेंटेशन आपके यहाँ पे एक जनरल टर्म आपके यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो ये एक एक सेगमेंट जो आपको यहाँ पे दिख रहे होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। और जब आपको ये सेगमेंटेशन आपको वहाँ पे दिख रहा है, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड एज मेटामेरिज्म। तो उसमें वो टाइप्स नहीं है, यू डोंट हैव अ टाइप्स ओवर देयर। हाँ, टाइप्स आपको मिलता है व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग हर एक एनिमल के इंटरनल के अंदर सेगमेंटेशन आपका कैसा जा रहा है, देन दैट्स अ डिफरेंट टाइप्स। बट वो आप पढ़ते हो जब आप ग्रेजुएशन में कर रहे हो तो जूलॉजी, तब आप पढ़ते हो, अभी नहीं। अरीशा यार, for NEET at least you don't have any types. That is your earth form in this. Then you have a notochord. Now notochord is something we'll be doing later because it will take some time to complete the notochord. तो notochord के अंदर याद रखना, इतना याद रख सकते हो आप यहाँ पे कि हमारे पास भी notochord था, बट हमारा notochord कुछ और बन चुका है। तो क्या बन चुका है हमारा notochord अभी? What is the notochord? Vertebral column. vertebral columns. कॉलम। और क्या हमारे पास Endoskeleton. वर्टिकल कॉलम would be a correct answer. ये मुझे बताओ कि आपके पास गिल्स होते हैं या नहीं होते हमारे पास? इन एम्ब्रियोनिक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं और अब वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट हो जाते हैं। सुनो मेरी बात, लंग्स में कन्वर्ट नहीं होते वो, दे कन्वर्ट इनटू फेरिंग्स। फेरिंग्स सुना है नाम, जब आपने पढ़ा होगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। यस सर। यस सर। फेरिंग्स में वो कन्वर्ट होते हैं, आपके लंग्स में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, सो इसलिए यू कॉल फेरिंजियल गिल्स। जब आपके जो गिल्स होते हैं ना, हम कहते हैं फेरिंजियल गिल्स, लेटर ऑन दे विल कन्वर्ट इनटू द फेरिंग्स। अगर आप नोटिस करोगे ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, जो आपके जो फेरिंजियल गिल्स थे ना, वो आपके अंदर फेरिंग्स में कन्वर्ट हो गए, लेकिन आपके फेरिंग्स का लोकेशन आप देखो यहाँ पे, और लोकेशन देखो एक फिश के गिल्स का, काफी हद तक सेम होता है अगर आप देखोगे तो। ट्राई टू इमेजिन दिस थिंग। यस सर। फिश के जो गिल्स आ रहे होते हैं और जहां पे आपका फेरिंग्स आ रहा होता है, दोनों का लोकेशन काफी सेम होता है। बल्कि सिर्फ वही चीज ऐसे कोइंसिडेंटली सेम नहीं है, जो जीन होता है ना दोनों के अंदर, वो भी सेम होता है। द जीन विच इज गोइंग टू मेक द फेरिंग्स इन अस इज द सेम जीन विच मेक्स द गिल्स इन द फिश। सो एम्ब्रियोनिक लेवल पे भी हम काफी ज्यादा सिमिलर होते हैं। तो आप जब कहते हो ना, आई थिंक बीच में से आपको किसी ने सवाल पूछा था कि कैसे हम कह सकते हैं कि ये सारे रिलेटेड है हमसे, ये तो कितने अलग है, एंड वी आर सो डिफरेंट। एट एम्ब्रियोनिक लेवल, एट ए जेनेटिक लेवल हम लोग काफी सेम है। The hormone which is synthesized in the prawn is the same hormone you find synthesizing in a human being. So imagine, like at evolutionary level पे हम कितने similar हैं यहाँ पे. At some stage we are so similar. So yeah, that's the thing, right? So notochord हम लोग बाद में करेंगे. This is a topic which we'll do separately. And इसके बाद हम directly start करेंगे हमारे यहाँ पे. We'll start with your non-chordates. That is something we have to start with. ठीक है? So that is something we'll have to do. Right? So now tell me if there are some queries or questions in this, then you can go ahead and ask questions. बताइए ऋषा, बोलिए क्या सवाल है आपका यहाँ पे? So what was protostomes? See, assume that you have an embryo formation happening. और जब आपका यहाँ पे embryo बन चुका है ना, embryo बनने के बाद आपका यहाँ पे blastopore बनेगा. Do you remember, Riksha, what was my blastopore? Yes. That small depression over there. जो छोटा बड़ा depression वहाँ पे बना था, that was my blastopore. अगर मेरा blastopore वहाँ पे बनाता है mouth, if the blastopore, the depression which was formed, if the blastopore will form the mouth, then that animal or that group of animals will be called as my protostomes. अगर मेरा blastopore वहाँ पे बनाता है मेरे वहाँ पे anus, then that group of animals will be called as my deuterostomes. Simple है. अगर आपका blastopore mouth बना रहा है, तो समझ जाना उसका opposite जो वहाँ पे end होगा, that opposite end will be my anus, right? Yes.
So that kind of development is called as my, or that kind of group of animals or that group of phylum will come under the category of my protostomes. But अगर मेरा यहाँ पे ब्लास्टोपोर अगर मेरा एनस बनाता है, so that will be called by deuterostomes. तो वन ओपनिंग होगी तो प्रोटोस्टोम्स और टू होगी तो ट्यूटोस्टोम्स. नहीं. ओपनिंग तो हमेशा दो ही होगी ना हर किसी के अंदर. आप ये देखो कि जब आपका ब्लास्टोपोर आपको यहाँ पे बना, अगर आपका ब्लास्टोपोर, लेट मी शो यू इन द स्लाइड, रुक जाओ, ऐसे नहीं समझ आएगा. लेट मी कम बैक ओवर हियर. ओपनिंग तो बेटा दोनों ही होगी आपके यहाँ पे, माउथ एनस आपका दोनों ही आपको बनेगा यहाँ पे बनते हुए. द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, देखो, यू हैव एन एम्ब्रियो, राइट, ये ग्रो कर रहा है और यहाँ पे आपका डिप्रेशन आपका यहाँ पे बन चुका है. एक और एम्ब्रियो में आपको बनाता हूँ, यहाँ पे भी आपका एम्ब्रियो बन रहा है और इसके अंदर भी यू विल हैव दिस डिप्रेशन इज बीन फॉर्म्ड ओवर हियर. ये आपका डिप्रेशन आपका यहाँ पे बन चुका है. अब ये जो डिप्रेशन आपका बना है, द डिप्रेशन इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर. ये जो डिप्रेशन आपको बनते हुए आपको दिख रहा है ना यहाँ पे होल वाला, इज कॉल्ड एज ब्लास्टोपोर. अब अरीशा एंड ऑल ऑफ यू, अगर मेरा ब्लास्टोपोर यहाँ पे बनता है, दिस एरिया अगर फ्यूचर में बनाता है माउथ, अगर ये एरिया मेरा फ्यूचर में यहाँ पे माउथ बनाएगा, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये मेरा अंदर तो जाएगा ही, इट विल इनवेजिनेट, एंड इसका जो ऑपोजिट साइड मेरा यहाँ पे होगा, द ऑपोजिट साइड विल बी गोइंग टू बी माय एनस. Yes, sir. If the blastopore is forming the mouth, then that group of animals will be called as my protostomes. अगर मेरा यहाँ पे मेरा blastopore है, here also I have this depression that is going to be having the blastopore here. If the blastopore is forming the anus, then by default ये भी डिप्रेशन आपका अंदर तक जाएगा और अंदर जाने का यहाँ पे आपको क्या बनेगा, यहाँ पे आपको बनेगा इसका अपोजिट, that is your mouth. So if that is something we find happening in this is called as my deuterostomes. ऐसे ग्रुप को हम बोलेंगे यहाँ पे deuterostomes. बोलिए आफ्ताब, बोलिए. सर वैसे तो दोनों तो कॉमन चीज है, अगर माउथ ऐसे नहीं होता सर. आफ्ताब सर सुनिए, इतना सिंपल नहीं होता ये जैसे हम बता रहे हैं आपको. नहीं सर, आपको ऐसा करा है ना, मेरी बात सुनो. यू आर सेइंग ना कि सर वहां पे वो डिप्रेशन बन रहा है, तो वहां पे एनस बन रहा है, यहाँ पे डिप्रेशन है, यहाँ पे माउथ बन रहा है, दोनों सेम ही तो है, इसमें फर्क क्या है? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग मी ना, दैट्स व्हाट यू आर टेलिंग मी राइट नाउ. ये आप मुझे कह रहे हो ना. सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर यहाँ बस दोनों की चीजें मतलब प्लेस एक्सचेंज है. नहीं, इतना वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इतना सिंपल नहीं होता, इतना सिंपल आपको बताया जा रहा है, राइट. दैट इज द सेम, दैट व्हाटएवर आई हैव बीन टीचिंग यू राइट नाउ ना, वो बहुत ओवर सिंपलीफाई करके आपको बता रहा हूँ. यहाँ पे जब आपका यहाँ पे एनस बनता है ना, व्हेन यू फाइंड द एनस इज गेटिंग फॉर्म, यहाँ पे जितने भी आपके सेल्स होते हैं उनका एक्सप्रेशन ही अलग हो जाता है. दे स्टार्ट मेकिंग अ कंप्लीटली डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोटीन. सो मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे बिल्कुल चीज आपकी अलग हो जाती है. तो इतना जितना हम और सिंपलीफाई करके बताते हैं ना, ताकि बच्चों को समझ आए कि यहाँ से डिप्रेशन आपका अंदर गया और यहाँ पे आपका माउथ बन गया, तो इस प्लेस आपकी एक्सचेंज हो रही है. दैट्स अ वेरी सिंपल वे टू जस्ट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स. बट आप याद रखना कि यहाँ पे आपका पूरा जेनेटिक एक्सप्रेशन आपका चेंज हो जाता है यहाँ पे. If you have no question, then you can drop off. अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, then they can drop off. The lecture is almost like ended. आपने बीच में क्या बोला था? नेटवर्क एरर हो गया था थोड़ा. अरे कुछ नहीं, यही कह रहा था मैं आपको कि इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स. इट इज गोइंग टू बी मॉलिक्यूलर लेवल पे आपके काफी अलग चीजें आपको यहाँ पे मिलती है. जीन्स आपके यहाँ पे अलग एक्सप्रेस करते हैं दोनों एरिया के अंदर. इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट वी सी. बोलिए अरीशा, बोलिए, क्या सवाल है आपका, बताइए. सर जो प्लेटी हेलमिंथेस है वो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि उसका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट इन द लास्ट टेबल इन एनसीईआरटी वहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गन लेवल एंड बोथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट पोजेस. सो राइट, अगेन राइट. सो जब हम प्लेटी हेलमिंथेस देखेंगे ना सेपरेटली, तब आपको पता चलेगा वो वहाँ पे क्यों मेंशन किया हुआ है. बिकॉज अभी तो हम प्लेटी हेलमिंथेस को एक जनरल ग्रुप की तरह हम यहाँ पे देख रहे हैं ना.
we will start understanding platyhelminthes as a specific group. जब उसे वहां पे हम पढ़ेंगे तब आपको वो अनफोल्ड होगा कि वहां पे उसका क्यों लिखा गया है, which will be happening in the next class most likely, क्योंकि हम नॉन कोऑर्डिनेट्स अगले क्लास में स्टार्ट कर देंगे. Okay, sir. That is something you have to remember. All right, so that's what we have done. I guess no more questions from your side. I'll be sharing the mind map for plant kingdom first of all, and then बाद में इसका share करता हूँ आपके साथ. ठीक है? चलिए, let's wrap this up. We'll catch you again